बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you second year class? I hope everybody will be fine inshallah with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and enjoying a very safe and sound health. Dear students, welcome to English class, and in today's lecture we shall start your chapter number 5, that is on destroying books. Dear students, this essay has been written by J.C. Squire and it is a very, you can say, humorous essay, ठीक है, funny essay है, in which the author makes fun of those people who keep the old books at their homes and they don't get rid of the books. So in order, according to the author, it is very important to keep the books away from your homes because it makes a space for new books. ठीक है बेटा, अगर हम पुरानी चीज़ों को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, मीन टू से the things that are not being used by us or the things that are useless for us now, so how will the new things, they get room, they get space in your house? So he explains, he narrates his own experience of destroying his books. He had a lot of books at his home and it was not possible for him to destroy, to burn the books one by one at the gas stove, or so he decided to throw the books into the river. So for this purpose, beta, he took a sack and he kept all the books in that sack. But the way, the act of throwing the books, that sack into the river, it was very much, you can say, difficult for him, because he had a lot of thoughts that if he had seen by some policemen or the other people, so will all those people, they would misunderstand him. ठीक है, उसको misunderstand करेंगे that maybe he is a killer or he is throwing a baby in the sack and different things. He was captured by different thoughts. So he, you can say, he was quite nervous and he was afraid of being watched by the people or by the, you can say, constables, etc. So at last, in order to get rid of his, you can say, feelings and you can say the things that were disturbing him, so at last he was able to throw the sack of the books into the river. So the whole story narrates the very suspense and the difficulty of throwing books into the river by the author. So beta, let's start our text. It says in the paper that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public. Okay बेटा, पहले क्या होता था in the olden days that the people who don't need books, they sent those books to the troops, to the army. ठीक है, वो अपनी आर्मी को भेज देते थे because आर्मी वालों के पास, उनके पास थोड़ा सा बहुत जो टाइम होता तो उसमें जो है वो they kept enjoying the books. ठीक है, so he's saying that it says in the paper that, मीन टू से कि इट वॉज रिटन इन द पेपर. पेपर में ये कहा जाता है, पेपर में लिखा होता है कि दैट 2 मिलियन वॉल्यूम्स, के वॉल्यूम मीन बुक्स, 2 मिलियन जो बुक्स थी ना बेटा, वो किसको भेजेगी? हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स बाय द पब्लिक. पब्लिक ने, अवाम ने ट्रूप्स को जो है वो आर्मी को वो चीज़ें भेजी, बुक्स भेजी. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट दैम. सो उनका मुआयना करना, उनको देखना, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प होगा. Most of them, no doubt, are quite ordinary and suitable. कहते कि उनमें से कुछ जो थी वो बहुत ही, जो बुक्स थी वो बिल्कुल ऑर्डिनरी थी, कॉमन थी, ठीक है, एंड सूटेबल और मुनासिब भी थी, मौजूद थी. बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड दैट सच एज मैगजीन्स 20 years old, गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड बैक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स. ओके, कहते कि उसमें से कुछ ये बात भी कही गई थी दैट उनमें से जो कुछ किताबें थी वो कितनी थी कि लोग ऐसी फ़नी थिंग्स भी भेज रहे हैं जो कि 20 साल बेटा पुराने मैगजीन्स. सो दे आर वर्न आउट नाउ. सो वाई द पीपल दे आर सेंडिंग दीज थिंग्स टू द ट्रूप्स? It's very, you can say, bad thing. So he's saying that people were sending 20 years old magazines to the troops and guides to the lake districts, और जो कि ज़िला लेक डिस्ट्रिक्ट से मुतालिक मालूमात, मिनटू लेक डिस्ट्रिक्ट बेटा एक जगह का नाम है. सो एज वी हैव रेड दैट लेक डिस्ट्रिक्ट इन आवर essay, इन आवर नॉवल मिस्टर चिप्स. आपने इसमें, मैंने आपको इसमें बारे में बताया था. सो गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड बैक नंबर्स. ओके बेटा, बैक नंबर्स में जो पुराने
उसके जो पिछले एडिशन थे ऑफ विटाकर ओके विटेकर्स एलमेंक ओके विटेकर एलमेंक का जो बेटा उसके जो पुराने एडिशन थे वो भी उन्होंने भेजे। इन सम केसेस वन इमेजिन सच इंडाइजेस्टिबल्स गेट इनटू द पासेस बाय एक्सीडेंट। कहते हैं उनमें से कुछ ने शायद ये समझा होगा इन सम केसेस वन इमेजिन्स, कोई इमेजिन कर सकता है कि कोई ये सोच सकता है कि जो है हादसाती तौर पर बेटा ऐसी इंडाइजेस्टेबल्स जो कि विच कांट बी डाइजेस्टेड ईजीली, जिसको हम जो है अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मीन टू से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड दोज बुक्स। इतनी पुरानी बुक्स हैं उनको रीड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो ही सेइंग दैट गेट इनटू द पार्सल्स बाय एक्सीडेंट, तो हो सकता है वो हादसाती तौर पर वो चली गई हों पार्सल में, बट इज़ लाइकली दैट देयर आर दोज हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग रीड ऑफ बुक्स दे डोंट वांट। और उनमें से कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं ना कि जो अपनी बुक से निजात हासिल करना चाहते हैं, हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी, उनको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी ऑफ गेटिंग रीड ऑफ बुक्स दे डोंट वांट, जिन बुक्स को नहीं चाहते उन बुक से निजात हासिल करना एक अच्छी चीज़ उनको लगी। सो व्हाई हैव दे केप्ट देम इफ़ दे डोंट वांट देम, तो कहते हैं अपने पास उन बुक्स को क्यों रखते हैं अगर वो नहीं चाहते रखना। बट मोस्ट पीपल स्पेशली नॉन बुकिश पीपल आर वेरी रिलक्टेंट टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक। कहते हैं कि जो नॉन बुकिश पीपल हैं कि ऐसे लोग जो कि बेटा किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो कहते हैं कि वाई हैव दे केप्ट देम इफ़ दे डोंट वांट देम, बट मोस्ट पीपल स्पेशली नॉन बुकिश पीपल आर वेरी रिलक्टेंट, बहुत ही ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं। रिलक्टेंट मीन अनविलिंग, तो अनविलिंग होते हैं टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बुक की तरह नज़र आती है उसको फेंकना नहीं चाहते। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेज दैट वन नोज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम दैट इज़ बॉट फाइंड्स इट्स वे टू द शेल्फ एंड स्टेज देयर। तो कहते हैं कि इस तरह से हम जानते हैं कि ज़्यादातर ऐसे घरों में जहाँ इन अनपढ़ लोग रहते हैं, ठीक है, इलिटरेट पीपल जो अनपढ़ हैं, हु कांट स्टडी, जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते, दैट वन नोज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम, कि वर्थलेस इनसिग्निफिकेंट जो वॉल्यूम्स हैं जो कि किताबें किसी भी काम की नहीं हैं, दैट इज़ वॉट फाइंड्स इट्स वे टू अ शेल्फ, तो फिर उनको कहाँ रखा जाता है, उनको शेल्फ में पहुँचा दिया जाता है, अलमारी में पहुँचा दिया जाता है, एंड स्टेज देर वहीं पे पड़ी रहती हैं। इन रियलिटी इट इज़ नॉट मियरली एब्सर्ड टू कीप रबिश मियरली बिकॉज इट्स प्रिंटेड। कहते हैं कि सिर्फ ये एक एब्सर्ड मीन रिडिकुलस थिंग है, सिली थिंग है कि चीज़ों को सिर्फ इसलिए अपने पास रख लेना बिकॉज दे आर प्रिंटेड, इट इज़ अ यूजलेस थॉट। सो इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय। कहते हैं ये पब्लिक ड्यूटी है कि इसको डिस्ट्रॉय करें। डिस्ट्रक्शन नॉट मेरली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स बट सेव्स man's hears the trouble of sorting out the rubbish और sorting और स्टोरिंग इट, ठीक है। तो कहते हैं कि उससे ये फ़ायदा होता है कि ना सिर्फ ये कि जो उनकी बुक्स के लिए नई बुक्स के लिए जगह बन जाती है, बल्कि जो उनके आने वाली नस्लें हैं, ठीक है, वो भी इस अज़ियत से बच जाती हैं कि वो जो है वो उन किताबों को उनकी छांटी करें या उनमें से कोई बुक निकाल के उसको रीड आउट करें। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी to destroy books. Now what is the next step? The author is saying that people should destroy books, but it is not always easy. It's not an easy task to destroy the books. They may not, if you have few books, then you can easily destroy them, you can easily put aside those books. But if you have a lot of books, okay, so it will bring a difficulty for you. So the author is saying that they may not have as many lives as a cat, but they certainly die hard. कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी या उनके पास इतनी शायद एनर्जीज ना हो जितनी कि एक कैट के पास होती हैं, बिल्ली के पास होती हैं, लेकिन वो जो है वो मुश्किल से ख़त्म होती हैं, ठीक है। बट सर्टनली डाई हार्ड, मुश्किल से ख़त्म होती हैं। एंड इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम, और उनके लिए एक जो स्कैफोल्ड है, तख्तादार है, या उनके लिए एक जो है वो कह सकते हैं इसको हम किस तरह प्लेटफॉर्म कह सकते हैं बेटा, कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना कि जिसके थ्रू जो है वो उनको किया जाए, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, इट इज़ वेरी हार्ड। सो दिस डिफ़िकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शेडो ऑफ द रोप। कहते हैं कि ये जो डिफ़िकल्टी थी एक दफ़ा तो मुझे फांसी की शेडो ऑफ द रोप, फांसी के फंदे तक ले आई, ओके। सो आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड एज शेक्सपियर वुड से हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी। कहते हैं कि मैं चेल्सी में रहता था, ओके।
शेक्सपियर के एज शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर के अल्फाज में जो है वो छोटा और सबसे ऊपर वाले फ्लैट में रहता था। एंड बुक्स ऑफ इन्फीरियर माइनर वर्स ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड देयर until at last I was faced with alternative for either evicting the books or else leaving them in sole undisturbed tenancy and taking rooms always for myself. कहते हैं कि अब जो now he is discussing with us his own experience. He is saying that कि इन चेल्सी एंड बुक्स ऑफ इन्फीरियर माइनर वर्स, वो बहुत ही जो है आप कह सकते हैं इन्फीरियर सी, जो इतनी अच्छी वो बुक नहीं थी, ठीक है। सो वो उसके पास थी, तो उसने क्या हुआ, ग्रेजुअली वर्स ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड, और उन्होंने भी जो एक्यूमुलेट मीन गैदर या असेंबल, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना उसमें जो है वो बुक्स उनके पास काफ़ी उसके पास जमा होने शुरू हो गई, ठीक है। एक्यूमुलेटेड देयर अंटिल एट लास्ट आई वाज फेस्ड विद अल्टरनेटिव ऑफ ईदर इविक्टिंग द बुक्स, कहते उसके बाद मुझे ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि मैं दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ का सामना करूँ, किसी एक चीज़ को चुनूँ, ठीक है। इविक्ट मीन रिमूव, ऑल्टरनेटिव ऑफ ईदर इविक्टिंग द बुक्स, या तो मैं किताबों से छुटकारा हासिल करूँ, और एल्स लिविंग दैम इन सोल, या फिर जो है वो उनको मैं किसी इसको छोड़ दूँ, इनको तनहा छोड़ दूँ, अनडिस्टर्ब टेनेंसी, या फिर मैं जो है ना एक ओके टेनेंसी होती बेटा ऑक्यूपेंसी, तो कहते कि मैं इनको कहीं उनको छोड़ दूँ उनके ऊपर और ख़ुद अपने लिए रहने के लिए कोई और जगह देख लूँ। सो इट वॉज हिज सिचुएशन। no one would have bought these books, कहते हैं कि अब तो इन किताबों को कोई भी ना ख़रीदता, because these books were very old, so I therefore had to throw them away or wipe them off the map together all together, कहते हैं या तो मैंने उनसे जो है उनको दूर फेंकना था या इनसे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करना था। But how? This is the question. There were scores of them, बहुत ज़्यादा थी बेटा, scores of them इनके plenty of them, ठीक है, there were plenty in numbers. I had no kitchen range and I could not toast them on the gas cooker or consume them leaf by leaf in my small study fire. कहते ना तो मेरे पास जो है वो कोई गैस का चूल्हा था जिसके ऊपर मैं उन्हें पेच करके वर्क करके उनमें जला सकता, ना ही मेरी मुतालका की कोई अंगीठी में कोई ऐसी जो है वो बनी हुई थी जिसमें आग जला सकता, ठीक है। सो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम, for it is almost as hopeless to try to burn a book without opening it as to try to burn a piece of granite. कहता है और बेटा he is quite right कि if you try to burn a book in such a way that it is not open, so it will be difficult for you, okay. So in the end I determined to do to them what so many people to do to the kittens, tie them up and consign them to the river. कहता क्या मैं उसके साथ वही करने जा रहा था जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कि जो है वो कंसाइन कर देते हैं, कंसाइन मीन हैंड ओवर, इसको हैंड ओवर कर देते हैं किसके, रिवर के। सो आई इम्प्रोवाइज्ड सैक, ओके उसने बेटा क्या किया, इम्प्रोवाइज इंतज़ाम किया, मैनेज किया, एक सैक का एक जो है वो उसने बेटा बोरी का इंतज़ाम किया, स्टफ द बुक्स इनटू इट, उसके अंदर बुक्स सारी ठूंसी, पुट इट ओवर माई शोल्डर, और जो है वो उसके अंदर डाली बुक सारी उसने और अपने शोल्डर पे रखा, एंड वैन डाउन द स्टेज इनटू द डार्कनेस, और तारीकी में सीढ़ियों से नीचे उतर कर चल दिया। Okay dear students, it's enough for today. I hope all of you have well understood, and if you not understand anything you may ask me. Okay beta, till tomorrow, stay blessed. Allah Hafiz.